dear Earthlings, hope all of you are fit and fine and healthy and doing well. And today's topic, welcome to Vibrant first of all. And today's topic will be on units and dimensions. But I know that कुछ दिन से बहुत boring feel हो रहा था because the topics which we are understanding is not practical. Well, we are not feeling at least that it is some practical. All the numericals and the errors and the significant figures which we have studied in the previous lecture. But ये units and measurement तभी मज़ा आएगा when you will be doing practical experiments, because in experiments the most beautiful thing is that when we do perfect experiment then you can link those experiment with formulas and laws. और डायमेंशन जब हम लोग को समझ में आता है then we can feel the theory and equations. That's the most beautiful thing. And only because of your perfect calculation, Maxwell understood the velocity of electromagnetic waves and the light are the same, and he then concluded that light is in fact an electromagnetic wave. जब हम लोग को calculation fit to fit होता है, cut to cut होता है, then we can link something to one another. अच्छा इसका भी है उसका भी है. So that is the beauty of it. But today's topic will be far more interesting because it's a bit out from Earth. Earth के बाहर हम लोग को जाना पड़ेगा, space में जाना पड़ेगा, and in there we will be understanding the practical method, practical experimental method to measure, the very distant star और बहुत दूर दूर का planets. But wait a minute, कितना दूर हो सकता है कोई स्टार, कितना दूर दूर हम लोग का यूनिवर्स का एक्सपांशन है, उसका ब्रीफ एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, the moon, which our astronauts takes 4 days to travel, our light takes 1.3 seconds. जो हम लोग से लगभग 151 मिलियन किलोमीटर्स अवे है, उधर से लाइट को आने में ओनली 8 मिनट्स लगता है. इवन हम लोग का जो लाइट है वो एक साल लग जाता है उसको ट्रैवल करने में. एक साल में लाइट अप्रॉक्सीमेटली 6 ट्रिलियन किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. बट यू नो दैट कुछ स्टार, जैसे कि हम लोग का सबसे नियरेस्ट स्टार जो कि प्रॉक्सिमा सेंटोराई है, इट टेक्स 4.24 ऑलमोस्ट लाइट ईयर्स. इतना लाइट ईयर लगता है, 4 साल लग जाता है लाइट को ट्रैवल करने में. तो डिस्टेंस कितना होगा जस्ट थिंक, क्योंकि एक लाइट ईयर में 6 ट्रिलियन ऑलमोस्ट किलोमीटर्स हो. इट्स अ ह्यूज थिंग. इवन आवर मिल्की वे गैलेक्सी, उसके एक पॉइंट से अक्रॉस द गैलेक्सी अगर लाइट को चलना है, इट टेक्स 100,000 लाइट ईयर्स. एंड द नियरेस्ट गैलेक्सी विच इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उनको भी उधर भी पहुंचने में इट टेक्स मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स टू रीच देयर. एंड इवन देयर आर बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स farther celestial objects. Just think what are the massive distance of the universe, and the universe is still expanding. By the experiment of redshift and Doppler effect, we have concluded that every day it is accelerating. आज अगर 3 मीटर पर सेकंड में बढ़ा था तो कल 10 मीटर पर सेकंड में बढ़ेगा. Like that, it's changing, it's increasing day by day. So just think the vastness of space and universe. Now today we need to know how ISRO, NASA and all the agencies, and how do we calculate the distant star. We can't go there. So there is a method called trigonometric parallax. What do you do there? See, first of all you stick out your thumb. You close one eye and then the other, then one, then other, then one, then other. What do you see? You will be, the apparent position of your thumb will be shifting. Really you are not shifting the thumb, but you will be visualizing that कि हाँ इसका पोजीशन तो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है. द मोर फार्दर यू टेक द लेसर इट शिफ्ट्स. जितना तुम दूर लेके जाओगे, तभी हम लोग जब ट्रेन से जाते हैं तो नज़दीक का पेड़ तुरंत गुजर जाता है, मगर दूर का पहाड़ जो हम लोग देखते रहते हैं, इट टेक्स टाइम टू पास. बिकॉज इफ दिस इज योर 2 eyes and if this is your thumb, it's closer, it makes a bigger angle. But when it is farther, the angle becomes smaller. एंड क्योंकि 2 पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं, सपोज ए पोजीशन एंड बी पोजीशन, द पोजीशन शिफ्ट्स क्योंकि एंगल अलग हो रहा है हर बार में. सो दैट इज द लॉजिक. व्हाट इज द शिफ्टिंग? बट हाउ डू यू गेट इट? इट्स वेरी सिंपल. लेट्स डू द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, देन वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग इट वेरी क्लियरली. सपोज दिस इज आवर ऑर्बिट वेयर द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. Now, when the Earth is here, let's say at the January month, and after 6 months, it will be reaching here at maybe the June or July month, approximately.
So when we are measuring far away stars, we can't just measure by our eyes because the eyes are small and it will be making a very small angle. It will be not making any angle at all because it will be parallel because it is so much far away. So we need bigger eyes. That's why we took bigger eyes. एक बार हम लोग इस आंख से ऑब्जर्व करेंगे यानी इस पोजीशन से ऑब्जर्व करेंगे. After 6 months, it will be reaching here. And these two positions act as our two eyes. क्योंकि बहुत दूर का चीज देखने के लिए आंखों का डिस्टेंस तो बड़ा होना पड़ेगा, आंख तो बड़ा नहीं कर पाएंगे हमारा. तो इस तरीके से हम लोग का आंख बड़ा हो गया तो हम लोग टू डिफरेंट एंगल्स पे वी कैन मेजर द डिस्टेंस. बट नाउ हाउ द डिस्टेंस, हम लोग दोनों एंगल तो मिल गया, इधर ये एंगल हम लोग को चाहिए because we know the distance from here to here which is the arc. This is the arc. Then if we know the arc and if we know the angle then we can find the radius which is the distance. So that time जब हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं तो हम लोग को ऐसा एक स्टार लेना पड़ेगा जो कि मान के चलो बोर्ड से भी बहुत बाहर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है और बहुत दूर का चीज़ हमारा उसका लाइट हमारे ऊपर पैरेलल आता है. हम लोग ने 10th लेंस मिरर चैप्टर में भी हम लोग ने पढ़ा था. So when lights are coming from very far away, it comes in a parallel position और हर जगह से आता है. मगर हम लोग इस पॉइंट में हम लोग ने स्काई को देखा और ऐसे स्टार को ऑब्जर्व करने का कोशिश किया जिसका लाइट हमारे ऊपर पैरेलल आ रहा है और 6 महीना बाद वापस वही स्टार का अगर लाइट हमारे ऊपर पैरेलल आ रहा है, दैट मीन्स दिस टू स्टार, जो स्टार को हम लोग देख रहे हैं, इट इज वेरी फार्दर अवे फ्रॉम अस. इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हम लोग अभी इस एंगल को मेजर कर सकते हैं आराम से क्योंकि हम लोग ने पैरेलल देखा और इसको कितना डिग्री इंक्लाइन देखा और इधर कितनी डिग्री डिक्लाइन देखा, कितना डिग्री हम लोग को मुड़ना पड़ा. सो इफ इट्स θ1 एंड इफ इट्स θ2, सो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये और अगर मैं बीच से लाइन खींच दूं, व्हाट हैपेंस, दिस टू पैरेलल, दिस आर ट्रांसवर्सल एंड वी गेट दिस एंगल व्हिच इज θ2 and we get this angle which is θ1. And now if we add this θ1, the total angle will be the parallax angle. θ1 plus θ2 is the parallax angle. And when we know the angle, we also know the arc. What is the arc? The distance from here to here. sun से अर्थ का दूरी हम लोग को पता है, that is 1 astronomical unit, and this is also 1 astronomical unit. So what it become? There is 2 astronomical unit distance when the earth is traveling from here to here. So that is the arc. And when we divide arc upon angle, which is this θ1 plus θ2, we get the radius, which is the distance. Radius or the distance from distance star. हम लोग को अभी इसका डिस्टेंस मिल जाता है. सो हम लोग को कहीं पे भी अगर एंगल दिया है, कोई भी प्लैनेट का, बोला कि हम लोग का जो पैरेलक्स एंगल क्रिएट हो रहा है वो इतना है और हम लोग का जो ऑब्जर्विंग पोजीशन का बीच में डिस्टेंस है वो इतना है, हम लोग बस सिंपल डिवाइड करना है एंड वी विल बी गेटिंग द डिस्टेंस. वेरी फाइन, वेरी इजी टू नो. So this is the trigonometric parallax method which we use to calculate distant stars, far away stars. But what about the very very far away, means which are almost millions and millions and millions of kilometers, means farther than this. So there are some stars which are very much instable and which are more farther than these stars. Parallax method से हर स्टार का हम लोग ने डिस्टेंस हम लोग को नहीं निकाल सकते. For some stars like which are very instable, which is known as Cepheid variable stars, उनको मेजरमेंट करने का एक आसान तरीका है which is known as standard candle method. What is it? Standard candle method is that if you are holding a candle, for this example, now इसका intrinsic luminosity हम लोग को पता है कि कितना लाइट पर मीटर स्क्वायर में हम लोग को जा रहा है. If we know the luminosity, and now you tell your friend to hold the candle and move further and further and further and further away, what will be happening? The luminosity will getting decrease as further as it moves, because the luminosity and the distance have a inversely proportional relation, that to be the distance squared. Luminosity is affected by the distance squared. As the distance moves, the luminosity gets decreased at a drastic rate. So that is the reason कि हम लोग का ये जो कैंडल है, we can compare with our Cepheid variable stars.
they are not moving away, but they are fluctuating, the fluctuation. And by the fluctuation we know that what its actual luminosity or intrinsic luminosity. But how? It's very simple. See, so the more the luminous the star, जितना स्टार luminous होता है, slower the rate of fluctuation, वो धीरे धीरे कंप्रेस और फ्लक्चुएट, उसका लाइट का जो बॉल होता है, जो भवंडर होता है, वो ऐसे फ्लक्चुएट करता है. बट फेंटर द स्टार, ल्यूमिनिसिटी कम होता है तो वो क्विकली, उसका जो टाइम पीरियड रहता है फ्लक्चुएशन और डिफ्लक्चुएशन का, वो बहुत फास्ट होता है. सो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द ल्यूमिनिसिटी ऑफ दैट स्टार, द इंट्रिंसिक ल्यूमिनिसिटी. और उसका असली ल्यूमिनिसिटी हम लोग ने जब जान लिया और हम लोग के पास जितना लाइट आ रहा है वो कितना कम है, हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे पास तो इतना ही लाइट आ रहा है, और उसका जो ल्यूमिनिसिटी है एक्चुअली दैट इज इतना, क्योंकि उसका वो फ्लक्चुएशन रेट्स हम लोग को पता चल रहा है. एंड नाउ वी नो द रिलेशन, जैसे कि कैंडल में हम लोग ने जाना था, देन बाय द ल्यूमिनिसिटी डिक्लाइन रेट कितना मेरे पास घट गया, तो उस घटने के रेट से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि वो स्टार हमारे से कितना किलोमीटर, कितना मिलियन किलोमीटर दूर है. दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेथड. That is known as the standard candle method. But wait a minute, इससे बाहर क्या होगा? Because we have understood the vastness of the universe. इससे दूर जो स्टार रहता है उससे हम लोग कैसे पता चलेगा? जो हम लोग के दूसरा गैलेक्सी में रहता है उससे वो कैसे पता चलेगा? वो तो बिलियन बिलियन किलोमीटर्स दूर है. After 40 million kilometers, even our most powerful telescope like the Hubble telescope, it is also not able to capture द पिक्चर्स ऑफ द स्टार्स क्लियरली, क्योंकि वो ब्लरी हो जाता है, ब्लर हो जाता है, जैसे हमारे कैमरा में होता है बहुत दूर का चीज़ देखने के लिए. सो वी यूज अनदर मेथड लाइक द सेम स्टैंडर्ड कैंडल मेथड विच इज कॉल्ड टाइप A1 सुपरनोवी. नाउ व्हाट इज अ सुपरनोवा और सुपरनोवी? सुपरनोवा इज अ स्टेलर फेनोमेना, जो स्पेस में एक घटना होता है जब स्टार मरता है, नॉट लाइक वैसा वाला मरना नहीं, जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो लास्ट एक स्पार्क क्रिएट करता है, जैसे कि हम लोग का कैंडल या लैम्प जब बुझने के टाइम होता है, एक्सटिंग्विशन टाइम आता है, तब वो एक छोटा सा स्पार्क क्रिएट करके बुझ जाता है. सेम हैपेंस फॉर सर्टेन स्टार, सब स्टार में नहीं होता है, बट वन ऑफ द मेथड्स अ स्टार डाई इज सुपरनोवा. तो जो स्टार सुपरनोवा में जिसका सुपरनोवा होता है, दे ब्लास्ट, एंड व्हेन दे ब्लास्ट दे रेडिएट enormous amount of light energy and all the other radiations around it. और उसका जो लाइट रहता है ना, पूरा गैलेक्सी को आउटशाइन कर देता है, लाइट कर देता है पूरा गैलेक्सी को. एंड इस टाइम पे हम लोग को क्या होता है, हम लोग को उतना दूर का भी एक इंडिविजुअल स्टार का लाइट हम लोग को मिल जाता है. जितना ल्यूमिनस स्टार होता है उसका लाइट एक्सप्लोड होने के बाद, बाहर निकलने के बाद उसको फेड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि कभी भी कोई अगर एटम बम भी फूटता है उसका लाइट का जो स्टेबिलिटी वो बहुत देर तक रहता है, उसका लाइट, क्योंकि वो लाइट बहुत दूर तक फैल चुका है, उसका लाइट को अभी पूरी तरीके से फैलते फैलते कम होने में इट विल टेक टाइम. सेम जब वो सुपरनोवा होता है तो कुछ स्टार का जो लाइट जल्दी फेड हो जाता है. बाय दैट, जैसे कि सिफिड वेरिएबल में हम लोग ने समझा, उसी घटना से हम लोग समझ सकते हैं कि जिस स्टार का सुपरनोवा हो रहा है उसका ल्यूमिनिसिटी कितना होगा. अगर धीरे धीरे फेड हो रहा है बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस है, अगर जल्दी फेड हो गया दैट मीन्स द स्टार इज अ बिट फेंटर. एंड सेम द डिक्लाइन रेट ऑफ द ल्यूमिनिसिटी विच इज कमिंग टू आवर आइज, जो लाइट उस स्टार से आया, जो लाइट मेरे आँख पे आया, उसका डिक्लाइन रेट हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ उसका ल्यूमिनिसिटी इतना है, मेरे पास आ रहा है इतना, तो इतना और इतना अगर आ रहा है तो बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर के हिसाब से हम लोग को रिलेशनशिप पता है. एंड वी कैन फाइंड नॉट इन राउंड, इट इज बियॉन्ड बुक. व्हेन यू विल बी ग्रोइंग अप एंड रिसर्चिंग इन इसरो और नासा, देन यू विल बी फाइंडिंग हाउ टू डू दैट. उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, बट द थ्योरी इज दिस, द वर्किंग फॉर्मूला और लॉ इज दिस, दैट बाय द डिक्लाइन रेट of the luminosity we can calculate the distance by knowing its true luminosity. तो ये 3-4 चीज़ जान के we can find out. but हमारे सिलेबस में पैरेलैक्स मेथड का कैलकुलेशन है, हम लोग को दे देगा एंगल को, सर्टेन जो एंगल रहेगा वो रेडियन में हम लोग को कन्वर्ट करना रहता है, एंड द आर्क जो है वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, वी विल गेट इन द डिस्टेंस इन परफेक्ट फॉर्म. बट वेट अ मिनट, इसमें और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लाइट is a beautiful thing, because लाइट का स्पीड के अलावा लाइट कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करता है. वी ऑल्सो नो
द कॉम्पोजिशन ऑफ दो स्टार्स, जो कि दूसरा गैलेक्सी में जिसका सुपरनोवा हो रहा है, उस लाइट जब हम लोग के आँख में आता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ उसका ल्यूमिनिसिटी घटते घटते आता है, बहुत ही कम लाइट आता है, मगर उस कम लाइट के अंदर हजारों इन्फॉर्मेशन छुपा रहता है। उनके अंदर कुछ लाइट रहता है, कलर्स रहता है, और वो कलर हम लोग स्पेक्ट्रम के ऊपर रख के एनालाइज करते हैं। कुछ कलर मिसिंग रहता है, जो कलर मिसिंग रहता है उस लाइट के अंदर, उस जो हम लोग के पास लाइट आया, हम लोग ये समझ लेते कि उस स्टार में वो लाइट एब्जॉर्ब किया गया है। कौन एब्जॉर्ब करता है? एलिमेंट। सर्टेन एलिमेंट एब्जॉर्ब सर्टेन कलर ऑफ लाइट। तो जो लाइट उस स्पेक्ट्रम के अंदर, उस लाइट के अंदर मिसिंग है, मतलब वो लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है। एंड बाई दिस वी ऑल्सो नो द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टार्स एंड इवन द ब्लैक। अभी ब्लैक होल इतना ज़्यादा दूर है, मगर फिर भी हम लोग को इतना आइडिया सिर्फ लाइट की वजह से ही मिला, बिकॉज वी कैन ट्रेवल सो फार द डिस्टेंस। सो आई थिंक दैट फ्रॉम नाउ ऑन you will be knowing the beauty and the vastness and the elegance of physics, and that is why I hope that you will be more interested from now on, because don't judge the lectures by laws and formula, क्योंकि हर एक चीज़ तुम्हारे बाद में काम आने वाला है, and it's a great thing to study physics and all the other subjects. I respect every other subject, but physics is something different. Okay, stay tuned, study hard, study well, make your future bright. Jai Hind.